There is misconception in public that heart attack and cardiac arrest are same. That is the time you give mouth to mouth breathing and chest compression to restart his heart. तो सर हमने ये सुना है कि men are more prone to heart attacks than women. Is it true? Yes, absolutely. So you are saying I'm at better safe place than men? Absolutely. Actually इंडियन कम्युनिटी में ये बहुत धारणा है कि हम लोग वॉक को जाते हैं, दैट इज एग्जस्ट। नॉनवेज इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो मैं मजाक में बोलता हूँ कि अगर आपका जो वॉच है आपके मोबाइल पे ईसीजी नहीं दिखा रहा है, हाँ। दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपका हार्ट बंद हो गया या किसी ने आपका वॉच निकाल के रख दिया है। नई चीज ये है कि अभी लेजर एंजियोप्लास्टी आ रही है, डे टाइम या बोल सकते हैं लंच टाइम एंजियोप्लास्टी की कंसेप्ट आई है। लंच टाइम एंजियोप्लास्टी, दैट्स अ ब्यूटीफुल टर्म, आई मस्ट से। आप कैथ लैब में आ जाओ, वहाँ पे एक गणपति बापा की मूर्ति लगी हुई है, यीशु क्राइस्ट है। वी डेफिनेटली पे बिफोर सर्जरी टू डिलीवर द बेस्ट। Hi and welcome to today's podcast. Today we have with us Dr. Abhijit Palshekhar, Director of Cardiology, Sayadri Hospitals, the man with golden hands. Sir, welcome on today's podcast. Thank you. To start with the basic, how are you? How are you doing? I'm absolutely fine. And how are the rest of the things going? Absolutely. I mean, serving in heart care specialty is what you say is very delightful, very skillful and satisfying. Very true. Can't agree more than that. So, sir, we'll start with something very basic. Heart attack क्या होता है? What is heart attack? What is cardiac arrest? And what is the difference between these two? And does CPR works for both of them? There is misconception in public that heart attack and cardiac arrest are same, but Yes. actually they are not. Try to understand somebody dies because of some condition. Let it be stroke, let it be infection, respiratory failure. Ultimate end for anybody is a cardiac arrest. Okay, that is how the heart stops and then patient dies. So when heart is not beating, it is called as cardiac arrest, and usually this is the terminal event. Cardiac arrest can happen because of the heart attack, but it is not equivalent. Okay. Okay. Because often it is used as a synonym. Absolutely. When there is a heart attack, there is a choke up in the coronary artery, the artery which supplies the heart. The supply stops and you get severe chest pain, sweating, and this is called as heart attack. But whenever heart stops beating, patient collapses, and that is what is called as cardiac arrest. So heart attack is a different line of treatment. It can lead to a cardiac arrest, but heart attack is different, and cardiac arrest is usually near terminal event. But yes, if there is a cardiac arrest, it can be reverted with a CPR, cardiopulmonary resuscitation we call it as. It is given only and only when person is not responding, his heart has stopped, he is not breathing. Achha. Okay. In between, I saw a reel. I mean, somebody is conscious and somebody is giving CPR. A CPR. Yes. It was terrifying. I mean, conscious person receiving a mouth-to-mouth breathing and CPR is, I mean, which is not good. Somebody might have done it out of good intention, but frankly speaking, when patient is not responding, he is not breathing, his pulse is not palpable, heart sounds are not audible, that is the time you give mouth-to-mouth breathing and chest compression to restart his heart. Okay, so patient from cardiac arrest can revert back to normal life, and those few seconds or you can say minutes are very important when you can resuscitate that person. So this CPR training is commonly given for common people. There are training session. Everybody should be little bit aware of it and trained about it, so you can save lives. In normal situation, what we see is when a patient reaches ER, right? They typically all these patients have a history की छाती में दर्द हो रहा था, हमें लगा गैस्ट्राइटिस है, हम तो कुछ दवाइयाँ ले रहे थे, फिर गैस्ट्राइटिस कम नहीं हुआ, अभी हम लेके आए हैं. So my point here is कि हम जब तक ER पहुंचते हैं तब तक काफी लेट हो चुका होता है. So how do we differentiate between a normal chest pain and a heart attack? मतलब इन दोनों में difference कैसे पता चले for a layman, sir? For a layman, actually किसी को लगता नहीं कि यहाँ पे दर्द हो रहा है तो वो हार्ट अटैक हो सकता है. Even as a doctor, पेरिकल, पैरामेडिकल्स, हमेशा यहाँ दर्द होता है, हम लोग सोचते हैं कि एसिडिटी निकल जाए,
कुछ डकार आ गई है, तो वी ट्राई टू निग्लेक्ट दिस टाइप ऑफ सिम्टम। जब भी चेस्ट में दर्द होता है तो कुछ देर के लिए इनो खा लिया, पैंटोसिड ले ली, समझ में आता है, मगर आपके लक्षण नहीं रुक रहे। तो सर कितने देर तक वेट करना चाहिए? few hours you can say, अच्छा। not days together you are carrying on, हाँ, और आपको दर्द हो रहा है तो ये निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, हो सकता है वो एसिडिटी हो सकता है वो मसल पेन हो, मगर चेस्ट पेन जब भी होता है, एंड स्पेशली फॉर द पीपल हु हैव गॉट रिस्क फैक्टर्स, लाइक आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, या फिर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री फैमिली है, हिस्ट्री है। एब्सोल्युटली, तो निग्लेक्ट करने में मजा नहीं है। अगर आपका सिम्टम रिलीफ नहीं होता है घर वाले उपायों से या फिर कोई छोटा मोटी दवा लेके, तो आपको पक्का आके मेडिकल दिखा हेल्प दो एक लेनी बार, चाहिए। है ना? और ये ना एक मजे की बात है कि लोगों को ऑकवर्ड हो जाता है कि रात को 2 बजे मुझे पेन हो रहा है, मैं किसको बताऊं, डॉक्टर कौन जगह होगा। हाँ, सो फॉर पब्लिक इंटरेस्ट मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो कैजुअलिटी रहती है हाँ, वो 24 आवर चालू रहती है, और उन्हीं के लिए रहती है। उनके लिए रहती है। वहां पे डॉक्टर्स रहते हैं, ईसीजी Correct. रहता है, नर्सेस रहते हैं, और जरूरत पड़ी तो वो हमें उठा देते हैं। हम्म। ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई अटेंड नहीं करेगा। तो हम्म। ये जो ऑकवर्डनेस है, बीच में हो गया था एक सेलिब्रिटी का, रात में हम्म। सोचा पानी भी नहीं पी के सो गया, तो ऐसे नहीं है। आपको ऑकवर्डनेस छोड़नी है, पहले जान इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। पेन जो टॉलरेट नहीं हो रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, छोटे मोटे उपाय से बढ़ते ही जा रहा है, तो हाँ। आपको पक्का मेडिकल ले लेनी चाहिए। सो बेसिकली वी कैन सम इट डाउन कि अगर 2 घंटे से ज्यादा पेन है तो रीच आउट फॉर हेल्प, आवर ईयर्स आर ऑलवेज ओपन एंड वी आर देयर टू हेल्प। तो एब्सोल्युटली। सर यूजुअली हमने हमेशा सुना है कि यू नो आवर बॉडी इज वेरी स्मार्ट एंड इट कीप्स ऑन गिविंग यू साइंस कि कुछ गड़बड़ है, एंड वी कीप ऑन नेग्लेक्टिंग ह्यूमंस। सो व्हाट वुड बी द एक्सट्रीम रेड फ्लैग्स व्हिच वी कैन सी just a couple of hours, कि मतलब कुछ घंटों पहले, before the heart attack or cardiac arrest happens, what are the extreme red flags which should not be neglected at any cost? हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है। जो वार्निंग साइन आप बोल रहे हैं, एक स्वेटिंग बहुत बढ़िया वार्निंग साइन है। आपने देखा होगा कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है, आपके कपड़े गीले होते जा रहे हैं और नो रीजन। बॉडी को ये समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, बट इट गिव्स दैट सिग्नल को एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है तो कहीं पे कहीं गड़बड़ है। दूसरी चीज, हार्ट का पेन है वो काफी सीवियर रहता है। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि हार्ट का पेन हमेशा एक्सर्शन के बाद बढ़ता है। अच्छा। जैसे आप चलते हो, सीढ़ी चढ़ते हो, रन करते हो, तब से चेस्ट में पेन होना, स्वेटिंग होना और ब्रेथलेसनेस होना, ये जो ट्रायंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक साथ आता है तो वो हार्ट की तरफ इशारा देता है और बॉडी आपको बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ होती जा रही है। तो सर हमने ये सुना है कि यू नो मेन आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स देन वुमेन, इज इट ट्रू? Yes, absolutely. So you are saying I'm at better safe place than men? Absolutely. भगवान ने ना मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स को इस्ट्रोजन नाम का वरदान दे रखा है। वरदान दे रखा तो है। आसानी से हार्ट अटैक मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल को नहीं आती है। अच्छा। आपने सुना होगा आजू बाजू में आपकी एज के फीमेल्स को जल्दी से हार्ट अटैक नहीं आता है। बिल्कुल ही नहीं आता ऐसे नहीं है, आजकल वो भी काफी बढ़ते जा रहा है, मगर इन जनरल मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स आर वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्ट अटैक, इसलिए मेल को ज्यादा हो जाता है। हाँ, एक बार मेंसेस खत्म हो गए, आप पोस्ट मेनोपॉजल एज में चले गए, तो फिर फीमेल्स की हार्ट अटैक की रिस्क मेल जितनी ही हो जाती है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक्स हैपनिंग। सो यूजुअली हम जब भी यू नो व्हेन वी वांट टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, वी वांट टू टेक केयर ऑफ आवर हार्ट, द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी स्टार्ट अ वर्कआउट प्लान. And of late, something which is a burning topic is cardiac arrests or heart attack at gym while working out. And we have seen so many young adults who are going to gym, who were extremely fit, and they had sudden cardiac arrest and they could barely reach the ER. So it kind of creates a panic among us and people who don't know much about it कि workout करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या सिर्फ walk करें. So sir, what is this about, you know, increased incidences of cardiac arrest young adults में, fit लोगों में? What is it about? एक्चुअली इंडियन कम्युनिटी में ये बहुत धारणा है कि हम लोग वॉक को जाते हैं, दैट इज एक्सरसाइज। हाँ, वॉक पे जाते हैं। क्या करते हो फिटनेस के लिए? हम वॉक पे जाते हैं। मगर एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं इसको एग्री नहीं करूंगा। आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो उसमें कार्डियो और मसल ट्रेन दोनों इंक्लूड होने चाहिए। तो जिम में जाना अच्छी बात है, आपको थोड़ा कार्डियो थोड़ा मसल ट्रेनिंग करना चाहिए, क्योंकि मसल बिल्ड करना और मेंटेन करना भी इतना इम्पोर्टेंट है। गलती कहाँ पे हो जाती कि जब आप जिम जानते हो या ज्वाइन करते हो तो प्री ज्वाइन आपको थोड़ा सा वर्कअप करना चाहिए।
राइट, 2D इको, सो हार्ट का सोनोग्राफी सिंपल चीज है जिसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, पंपिंग कैसा है, कुछ स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज आपको नहीं है ना, अगर वो है और आप जिम चले गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती तो है। आप बोल रहे हो कि 2D इको काइंड ऑफ रूल्स आउट मेनी थिंग्स, many यस, things. मेनी स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज टाइप ऑफ थिंग। ये 2D को हम लोग नॉर्मली लाइफ में एक ही बार करते हैं, जो स्ट्रक्चर आपका बर्थ के टाइम पे था आज भी है और वैसे रहने वाला है। मगर दूसरी टेस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड एज स्ट्रेस टेस्ट। ओके, अच्छा, ट्रेडमिल टेस्ट जो आपने ट्रेडमिल सुना टेस्ट होगा। होता है यस, टिपिकली। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ईसीजी पुट ऑन करते हैं और बेल्ट पे चलाते हैं, तो उससे हम लोग जज करने की कोशिश करते हैं कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तब आपके हार्ट का सप्लाई इनफ है या नहीं है। अच्छा, तो ये दोनों टेस्ट नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ हार्ट डिसीजेस रूल आउट करती है, और फिर आपको ऐसे कुछ सडनली कुछ हो जाए ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, आप ये भी ध्यान रखिए कि जब हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं, बड़े उत्साह से जाते हैं, हाँ, तो पहले दिन 2 घंटे वर्कआउट कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, फिर प्रोटीन खा लिए, क्रिएटिनिन खा लिए और बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये ऐसे ठीक नहीं है। मैं हमेशा take it एडवाइस slow. करता हूँ, एब्सोल्युटली 3 चीजें जरूरी है। पहली चीज, आपको वार्म अप करना जरूरी जिम में। परफेक्ट, सेकेंड warm up. थिंग, यू हैव टू हाइड्रेट वेल, पानी काफी पीना चाहिए, आप स्वेट करते हो, यू हैव टू मेंटेन so दैट। keep sipping water. सिपिंग वाटर, एब्सोल्युटली नॉर्मल वाटर। एंड थर्ड थिंग, कोई भी एक्सरसाइज करने की आपकी कैपेसिटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हो तो पहले 10 मिनट से शुरू कीजिए, पहले दिन 1 घंटा ठीक नहीं है। या फिर आप डंबल्स मार रहे हो तो पहले 2.5 किलो से शुरू 2.5 कीजिए किलो से शुरू और ग्रेजुअली बिल्ट अप योर थिंग। हाँ, हाँ, एंड लास्ट थिंग, कूल डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. सडनली स्टॉपिंग एक्सरसाइज इज नॉट गुड। हाँ, सो धीरे धीरे आप स्लो डाउन हो जाइए, स्ट्रेचिंग कीजिए और फिर एक्सरसाइज खत्म कीजिए। okay. सो यू गो स्लो स्टेडी, फिर ये चीजें नहीं होगी। तो सर ऐसी कोई टेस्ट या फिर कोई प्रोसीजर या ऐसा कुछ है क्या वेयर आई कैन check what is my probability of getting a probable heart attack or a cardiac arrest? Has medical science developed there? Have we reached there yet? यूजुअली 2D और स्ट्रेस टेस्ट जो मैंने बोले वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, हाँ. दे आर नॉट 100%, बट येस ऑलमोस्ट 90% वो प्रेडिक्ट करते हैं। और ये दोनों टेस्ट परपेंडिकुलर टेस्ट है, वो दोनों साथ में कंबाइन करें तो 100% आपको पता चलेगा कि हार्ट की रिस्क आपको नहीं है। इससे भी एडवांस टेस्ट है जैसे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, आजकल आपने काफी सुना होगा, वो काफी रिलायबल टेस्ट है। हाँ, there's a lot of talk happening around it Yes. कि वो करवा लो so you can even see 20% 30% blockage. So is it true? I mean, is it that reliable? यस, एब्सोल्युटली, इट इज वेरी रिलायबल। हम लोग इसको निगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बोलते हैं। अच्छा, अगर आपकी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नॉर्मल है तो वो 100% नॉर्मल है। और फिर इसका ये कितने ड्यूरेशन तक we can consider this? I mean, is it to be done every year? नॉट रियली, आई मीन Okay. सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए जरूरत पड़ी तो, और वो अगर एक नॉर्मल है तो 5 साल तो आप पक्का एश्योर्ड रह सकते हो, क्योंकि कोई भी ब्लॉक ऐसे 1-2 साल में डेवलप नहीं होती है। अच्छा, आपका सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए। एज अ मेडिकल फैटर्निटी हम लोग काफी विश्वास रखते हैं। इट्स अ वेरी एक्यूरेट टेस्ट। और कैसे हो जाता है कि नॉर्मल एंजियोग्राफी हम लोग करते हैं, उसके हिसाब से सीटी स्कैन वाला थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है कि चलो सीटी स्कैन ही करवा रहे हैं, कुछ बड़ा नहीं होने वाला और कार्डियोलाइटिस एंजियोप्लास्टी नहीं करने वाला है, सो दैट बिकम्स कंफर्टेबल। yes. तो सीटी एंजियोग्राफी सही में अच्छी चीज है, और स्पेशली हाई रिस्क पेशेंट है जो डर रहे हैं और उनको कुछ और है who तो have करवाना family history, उनके लिए we can recommend यस। that, हम isn't लोग it? इसको ना रिस्क फैक्टर बोलते हैं। अच्छा, हार्ट के रिस्क फैक्टर जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ और फैमिली हिस्ट्री, इसको ना हम लोग रिस्क फैक्टर बोलते हैं। हर पर्सन में कौन सा रिस्क फैक्टर काम करेगा ये बोल नहीं सकते, मगर इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ये। 100% आपको फैमिली हिस्ट्री है तो आपको हार्ट अटैक आएगा ऐसे भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। कुछ मॉडिफाइबल है जो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ नहीं है मॉडिफाइबल। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए, अगर आपको रिस्क फैक्टर है तो ज्यादा एग्रेसिवली ये टेस्ट करानी चाहिए। तो सर अभी हमने बात की जिमिंग के बारे में, वर्कआउट्स के बारे में, तो एक जो बहुत कॉमन चीज होती है, द मोमेंट वी स्टार्ट वर्किंग आउट हमें कहा जाता है कि वर्कआउट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, डाइट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, सो एंड देन कम्स द रोल ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स, Yes. प्रोटीन शेक पियेंगे, बॉडी बनाएंगे, सो आर प्रोटीन शेक्स गुड फॉर हार्ट? इज इट गुड थिंग टू ऑप्ट फॉर? यस, एवरीबडी नीड्स प्रोटीन ऑलमोस्ट 1 ग्राम पर केजी। अच्छा, समझिए आपका वेट 55 केजी है तो आपको 55 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए। चाहिए। अभी नॉनवेज इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन,
जो नॉनवेज नहीं खाते वेजिटेरियन लोग, उनको प्रोटीन की मुश्किल हो जाती है, तो उनके लिए वे प्रोटीन अच्छी चीज है, मगर वो लिमिट में और प्रिस्क्राइब डोसेस में लेना जरूरी है. So they should reach out to a doctor to A understand how doctor much they or need. say you can say nutritionist who can guide you कि 1 ग्राम पर केजी. और प्रोटीन अच्छी चीज है, इफ यू वांट टू सप्लीमेंट उस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते. दूसरी चीज, प्रोटीन के साथ वाटर इनटेक ठीक रखना जरूरी है, क्योंकि काफी बार हो जाता है कि प्रोटीन एक्सेस ले लिया, हाइड्रेशन कम है, तो किडनी को वो अफेक्ट कर सकता है. तो प्रोटीन अगर सही मात्रा में लिए जाए, सही डोसेस में लिए जाए और ग्रेजुअली उसका डोसेस बढ़ाया जाए, तो इट्स अ गुड थिंग. तो मैं प्रोटीन भी रिकमेंड करता हूँ. सो सर, और एक चीज जो आपने अभी मेंशन करी थी कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कोई फिजिकल वर्कआउट ना होना, एबनॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स एंड ऑल दैट स्टफ. सो ये कोलेस्ट्रॉल, इज इट रियली बैड? क्या कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? व्हाई इज इट सो बैड? एंड इज देयर समथिंग लाइक दिस कि नॉन वेजिटेरियंस आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बिकॉज इन सारी चीजों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी हाई होती है. तो कोलेस्ट्रॉल क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे? सी, कोलेस्ट्रॉल इज इक्वल टू बैड ये चीज नहीं है. कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में नेचुरल सब्सटेंस है, उसका फंक्शन है कि यहाँ से वहाँ हार्मोन कैरी करना, विटामिन कैरी करना, काफी चीजें. तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में हमेशा घूमते रहता है, वो रहेगा और वो रहने ही वाला है, वो जाने वाला नहीं है. इट हैज गॉट फंक्शंस. जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में हो जाता है, एक्सेस, तो कहीं पे डिपॉजिट हो जाता है. जैसे हार्ट में डिपॉजिट हो गया, ब्रेन में डिपॉजिट हो गया, किडनी में हो गया, पैरों में हो गया. जैसे ना आप सोचिए, आपका घर है, नया सिंक लिया है आपने, तो वो पहले हम लोग क्या जानबूझ के वहां पे कचरा नहीं डालते, मगर ओवर द पीरियड धीरे धीरे जो जमा हो जाता है वो फिर चोकअप होने लगता है, क्योंकि एक्सेस हो जाता है. वैसे ही कोलेस्ट्रॉल का कि एक्सेस होने के बाद वो कहीं पे जमा हो जाता है, फिर वो तकलीफ देता है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कंसिस्टेंटली ज्यादा देर तक हाई रहा है. और कोलेस्ट्रॉल एक जनरल एक पैरामीटर है. कोलेस्ट्रॉल में काफी कंपोनेंट्स है, जैसे एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स. तो ये कंपोनेंट भी देखना, और गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको देख के एनालाइज करके अगर ज्यादा समझना है, बहुत जरूरी है. सिर्फ एक कोलेस्ट्रॉल इज ए जेनेरिक टर्म, उसके नीचे वाला जो लिपिड प्रोफाइल हम लोग बोलते हैं, वो प्रॉपरली एनालाइज होना चाहिए क्वालिफाइड पर्सन से, और उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए. आप जैसे बोलते हो कि नॉन वेजिटेरियन लोग, आई मीन कहा जाता है कि नॉन वेजिटेरियंस आर ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मत खाओ. नॉट रियली. सी, एक चीज है कि नॉनवेज इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. दैट्स ट्रू. तो हम लोग जो पीसेस खाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहती है, दैट इज गुड. प्रॉब्लम हो जाती है वो प्रोटीन के साथ हम लोग जो घी और मसाले और क्या सब करके उसको टेस्टी टेस्टी बनाते हैं, वो तकलीफ हो जाती है. ओके, सो somebody is eating like boiled chicken और थोड़ा सॉटे किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं. अगर ग्रिल्ड चिकन, एब्सोल्युटली, अगर आप वो डीप फ्राई करके खा रहे हो और रोज रोज खा रहे हो, तो ये अच्छी चीज स्वाद बन गया. एब्सोल्युटली स्वाद बन गया और हेल्थ चली गई आपकी. सो बस वो साइकोलॉजिकली होता है कि हमने बहुत प्रोटीन खा लिया, बट खाया कुछ नहीं है. सो प्रोटीन खाना बुरी बात नहीं है. प्रोटीन नॉनवेज से बहुत बढ़िया मिलता है, एक्सेस मात्रा में. उसके साथ जो बटर और ऑयल जाता है, दैट इज द प्रॉब्लम. यू शुड बी अवेयर कि किस टाइप का प्रिपरेशन आप खा रहे हो, तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो नॉनवेज कोई चीज नहीं, अच्छी चीज है. और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, या एब्सोल्युटली, इवन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर गुड. आई मीन वे प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बोला, इट इज मेड ऑफ मिल्क ओनली, मिल्क प्रोडक्ट. बीइंग अ वीगन, डज इट हेल्प? नॉट रियली. हार्ट वाइज अगर आप मिल्क से डिराइव्ड प्रोटीन खाते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. मिल्क में बहुत बार फैट हो जाता है, जैसे भैंस का दूध है, उसमें काफी ज्यादा फैट रहता है. अगर आप बॉईल करो और ऊपर का जो मलाई आती है वो निकाल दो तो कोई नहीं, वो अच्छी चीज है, वो आप बिल्कुल कंज्यूम करें. सो डू यू सजेस्ट कि हम वो स्किम्ड मिल्क ले या फुल फैट मिल्क लेके boil it, remove the fat and then consume? Remove the fat is a better option. Is a better option, definitely. So sir, because you are talking about oil here and we are talking about oil, so there's a lot of concept which is running ki olive oil kha lo, and all the celebrities, all the fitness freaks and influencers, they are talking about oil hata do, ghee add karo, and oil bhi khao to olive oil khao, mustard oil khao, refined oil hata do. तो ये क्या है सर? I mean, is there any good oil, and is ghee better than oil? बेसिकली कोई भी ऑयल है वो पूरा तरह से बुरा या अच्छा नहीं रहता है.
हर ऑयल के अच्छे और बुरे गुण रहते हैं, मगर इन जनरल वैसे बोला जाए तो सीड ऑयल्स आजकल हम लोग देख रहे हैं कि उससे इन्फ्लेमेशन काफ़ी बढ़ता है। सो हेल्थ फैकल्टी एडवाइस कर रही है कि आप नॉन सीड ऑयल ज़्यादा यूज़ करो, जैसे ऑलिव ऑयल यूज़ करते हो या फिर घी है जो हम ट्रेडिशनली कुकिंग में यूज़ करते जा रहे हैं। सो तो अप्रोक्सीमेटली सर कितना क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज गुड फॉर अ पर्सन इन अ मंथ? 1 लीटर ऑफ टोटल फैट कंजम्पशन इज गुड इनफ, ऑयल रहे घी होए जो भी आपको मिला के पसंद हो, मगर अल्टीमेटली आप ऐसे गिन के खाने से अच्छा आपके प्लेट में क्या है वो आप ज्यादा ध्यान दो तो बढ़िया हाँ। रहेगा। सो यू कैन कंज्यूम वेरियस ऑयल्स। मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऑयल आप चेंज करते रहो। समझो ये मैंने अपने ग्राउंड नट यूज कर लिया, नेक्स्ट मंथ में सनफ्लावर ले लिया, एक बार करडी का तेल ले लिया। सो आप अगर चेंज करते रहो तो दैट इज बेटर। हर ऑयल का कुछ अच्छा और बुरा मिलता है और आपका रोटेशन और स्वाद बना रहता है। प्रेफरेबली केमिकल जो प्रोसेस्ड ऑयल्स है, रिफाइंड ऑयल्स है, उससे अच्छा कच्चे घाने वाला आजकल हम लोग जो बोलते हैं कच्ची घानी। वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको केमिकल नहीं मिले रहते हैं। और घी भी लेना अच्छी चीज़ है अगर आप चम्मच से लो, पूरे बर्तन से घी लेने लगो तो अच्छी चीज़ नहीं है। बट कहा जाता है, आई मीन देयर इज आल्सो अ सेइंग कि ऑयल पूरा हटा दो, मेक एवरीथिंग इन घी। नॉट रियली, आई मीन आई डोंट रिकमेंड दैट। कोई भी एक्सट्रीमिज्म, वही तो बोल रहा हूँ कि एक्सट्रीमिज्म जब हो जाता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मॉडरेशन इज द की। हर चीज करनी चाहिए, मगर कहाँ पे रुकना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ऑयली खा रहे हैं तो एक आधा थोड़ा बहुत, एक आधा पकौड़ा, 2 पकौड़े खा ले, कोई दिक्कत नहीं, प्लेट नहीं खाली करनी चाहिए। प्लेट नहीं खाली करो, खाओ मॉडरेशन में खाओ, एक आध एब्सोल्युटली, खा लो, एब्सोल्युटली। है ना? तो सर अगर आपसे पूछा जाए कि 5 चीजें बता दीजिए जिससे हम हार्ट अटैक अवॉइड तो नहीं कर सकते इफ वी आर एट रिस्क, बट रिड्यूस कर सकते हैं, तो 5 लाइफस्टाइल हैबिट्स। First thing, first most is the 40 minute of aerobic activity. Okay. ओके। वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन, जिम में कार्डियो, आपको जो पसंद हो। अच्छा। ठीक है। अच्छा, आप सुबह करो ऐसे नहीं, दोपहर करो, रात में करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर काम में या आप घर में चलते हो वो एक्सरसाइज नहीं है। सो 40 मिनट ऑफ एरोबिक एक्टिविटी। सेकेंड थिंग डाइट आता है, जिसमें आपको जंक फूड कम से कम करना है। घर वाला जो खाना है सबसे बढ़िया रहता है, जो घर में पका हुआ है कम ऑयल में। होटलिंग और बाहर से फूड डिलीवरीज ये अच्छी चीजें नहीं है। फास्ट फूड कम कीजिए और हेल्दी खाना खाइए। आप ध्यान दीजिए कि क्या खा रहे हो आप। ओके। थर्ड चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको टोबैको कोई फॉर्म में नहीं लेनी है। ठीक है। 50% हार्ट अटैक्स और 50% कैंसर्स टोबैको की वजह से होती है। सो टोबैको इज एब्सोल्युटली नो। इतनी नहीं उतनी नहीं है, टोबैको को हाथ नहीं लगाना है, वो अच्छी चीज बिल्कुल नहीं है। देन फोर्थ चीज हो गई आपका वर्क लाइफ बैलेंस या मेंटल पीस, जो मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है। चाहे आप अध्यात्म की तरह जाओ कि वो वाला मेडिटेशन कर सकते हो योगा जैसा, या फिर आपके मोबाइल पे प्ले स्टोर पे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन के ऐप आते हैं जो बहुत सुंदर है। 10 मिनट आप प्रैक्टिस करो जब आपके टाइम से हो, तो वो आपका माइंड काम करेगा। और फिफ्थ थिंग इज गोइंग टू बी द रूटीन रेगुलर चेकअप्स। स्पेशली आप 40 के हो जाते हो, मेल हो या फीमेल हो, तो रूटीन कुछ चेकअप्स हम लोग जब रेकमेंड करते हैं तो ईयरली 2 ईयरली करने चाहिए, ताकि सरप्राइज विजिट हार्ट अटैक का ना हो। ट्रू। तो सर अभी जैसे आपने कहा फिटनेस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। दीज डेज स्मार्ट वॉचेस आर इन ह्यूज ट्रेंड, एंड ये स्मार्ट वॉचेस सब कर लेते हैं। दे काउंट योर हार्ट बीट्स, दे सी योर बीपी, एंड कुछ हार्ट स्मार्ट वॉचेस तो इवन क्लेम की ये ईसीजी भी कर लेते हैं। So are these reliable? Are these smart watches reliable? And does it detect only जो हमारे medical terminology में कहते हैं arrhythmias और angina? मतलब what is it? Are they reliable, sir? एक डिफरेंस है कि हम लोग जिसको मेडिकल ग्रेड मॉनिटरिंग बोलते हैं, जो आपके आईसीयू में लगा है, वो जो मॉनिटर है दैट इज मेडिकल ग्रेड मॉनिटर, उसकी उतनी एक्यूरेसी रहती है। अब ये मॉनिटर आप वॉच पे फिट करने की कोशिश करोगे तो देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज इन दैट, राइट। सेंसर जो रहते हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। हालांकि वो आपको हार्ट रेट बताते हैं, ईसीजी बताते हैं, मगर इट हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशन। काफी फेमस वॉच कंपनीज में बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए कि एरिथमिया डिटेक्ट किया जाए। अच्छा। मगर अल्टीमेटली उसमें ना एट्रियल फिब्रिलेशन नाम का एक ही एरिथमिया यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। अच्छा। तो आपका हार्ट रेट जानना, आपने कितने स्टेप्स किए जानना, और बेसिक ईसीजी ये हम लोग समझ सकते हैं, एरिथमिया उसमें समझ सकते हैं,
मगर 100% रिलाय नहीं कर सकते, स्पेशली मेडिकल जो ओपिनियन रहता है उसके अगेंस्ट में या वो टेस्ट के अगेंस्ट में। तो आपने स्मार्ट वॉच पहन ली और सब कुछ पता चल गया, ऐसे नहीं होने वाला है। तो मैं मजाक में बोलता हूँ कि अगर आपका जो वॉच है आपके मोबाइल पे ईसीजी नहीं दिखा रहा है, हाँ दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपका हार्ट बंद हो गया या बंद। किसी ने आपका वॉच निकाल के रख दिया है। that's really very very relatable, I must say. सर और एक चीज जो हमने काफी सुना है, so a few dear friends of mine and relatives have also said कि हम पेशेंट को लेके इमरजेंसी रूम पहुंचे, वहां पे ईसीजी हुआ, सारे टेस्ट्स हुए, एंड उसके बाद कुछ एक आध घंटे ऑब्जर्वेशन में रख के पेशेंट को वापस घर भेज दिया, and patient went home and collapsed. So these ECGs, are they actually reliable? I mean, how is it? I mean, how is it possible कि ECG हॉस्पिटल में नॉर्मल दिखा रहा है, बंदा घर पहुंच रहा है और उनको कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है? So basically ECG is a snapshot of your heart at that moment. Okay, अच्छा। it cannot predict the long term. So हम लोग नॉर्मली जब रिस्क फैक्टर्स है या हमको कभी शक आ रहा है कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हम लोग नॉर्मली कैजुअलिटी में उसको रुकवाते, कुछ घंटा ऑब्जर्व करते, ईसीजी रिपीट करते, और काफी टेस्ट है जैसे ट्रॉपटी नाम का टेस्ट है जो ट्रॉपटी जो हार्ट अटैक इंडिकेट करता है, तो वो एडिशनल टेस्ट कुछ करते हैं। और इसको ना हम लोग ट्रायज बोलते हैं कि कोई बंदा अगर चेस्ट पेन करके आता है तो उसको प्रोबेबिलिटी हार्ट की होने की कितनी है, वो हिसाब से हम लोग उसको क्वालिफाई करते हैं और उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। एनी पर्सन कमिंग टू द कैजुअलिटी 10 मिनट में ईसीजी होता है, हम लोग उसको ऑब्जर्व करके कुछ घंटे बाद रिपीट करते हैं, ट्रॉपाई करते हैं। और कैसे हो जाता है कि आपको अगर अभी हार्ट अटैक आने लगा तो ईसीजी में रिफ्लेक्ट होने के लिए टाइम लगने वाला है, सो इमीडिएटली वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो प्रॉब्ली वी नीड टू टेक सीरियल ईसीजी की कुछ डेवलपमेंट हो रही है क्या। अगर ये प्रिकॉशन हो तो ऐसे मिसहैप्स नहीं होंगे। तो सर ये नेचुरल बाईपास क्या होता है? एंड इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. इज देयर समथिंग एक्चुअली कॉल्ड एज नेचुरल बाईपास? यस, हमारा जो हार्ट है वो 3 करोनरी आर्टरी से सप्लाई होता है। अच्छा। लेफ्ट साइड को 2 रहती है हार्ट की, लेफ्ट साइड को, और राइट साइड को 1। समझिए एक आर्टरी अगर 100% बंद हो गई तो नेचर क्या करता है, दूसरी तरफ की आर्टरी से उसको सप्लाई करने की कोशिश करता है माइक्रो चैनल के हिसाब से, हम लोग जिसको कोलैटरल्स बोलते हैं। तो ये आर्टरी 100% बंद हो गई तो नेचर के हिसाब से ये जो नेचुरली वो ब्लॉक बाईपास करने की कोशिश होती है कोलैटरल से, इसको हम लोग नेचुरल बाईपास बोलते हैं। मगर ये डेवलप होने के लिए वो आर्टरी 100% क्लोज होना जरूरी है। अच्छा। और वो आर्टरी अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है और दूसरी तरफ से कोलैटरल्स हो गए जो नेचुरल बाईपास कॉमन भाषा में हम बोलते हैं, तो फिर लक्षण नहीं रहेंगे, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, तो दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल बाईपास। अच्छा सर, वी हैव heard a lot about in the European countries कि स्टेंटलेस एंजियोप्लास्टी, बिकॉज जब भी एंजियोप्लास्टी होती है सबके मन में कहीं ना कहीं एक शंका रहती है कि एक मेटल का टुकड़ा रह जाएगा अंदर, क्या ये सही है, is it safe? And we are seeing quite a few cases in European countries where advanced technologies, जहाँ पे there is no stent but there is an angioplasty. So when can we see such advancement in India, in our places? पिछले तकरीबन 3 सालों से मैं मेटललेस एंजियोप्लास्टी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑलरेडी। ये ऑब्वियसली मैंने यूरोप से सीखा है। एब्सोल्युटली। सो दिस हैज गॉट 2 आर्म्स। पहली आर्म रहती है जिसको हम लोग ड्रग कोटेड बलून बोलते हैं। मेटल रखना आप जैसे बोल रहे हैं, इट्स नॉट गुड थिंग फॉर लॉन्ग टर्म, स्पेशली यंग लोगों में अगर मेटल रहा तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम लोग ना जब ज़रूरत नहीं है स्टेंट की तब उसको ड्रग कोटेड बलून से बढ़ा देते हैं, वो ब्लॉक को वहाँ पे ड्रग लग जाती है और बलून निकाल लेते, तो कोई स्टेंट वहाँ पे नहीं बैठती। दिस इज वन आर्म। दूसरा आर्म है जिसको हम लोग एब्जॉर्बेबल स्टेंट बोलते हैं, जो मैग्नीशियम एलॉय से बना रहता है और वो 1-1.5-2 साल के बाद वो एब्जॉर्ब होकर वैनिश हो जाता है, तो फिर आपके बॉडी में मेटल नहीं रहता है। तो बेसिकली दोज आर 2 आर्म्स जिसको हम लोग मेटल लेस एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। बगैर स्टेंट डाले आपकी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। इंडिया में वो आ चुकी है और डेवलप भी हो चुकी है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। अच्छा। नई चीज ये है कि अभी लेजर एंजियोप्लास्टी आ रही है, जहां से हम लोग लेजर से वो जो ब्लॉक है, कोलेस्ट्रॉल है, क्लॉट है, उसको
पल्वराइज करते हैं, वेपराइज करते हैं और फिर स्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती। So how is it different from the traditional angioplasty that we do? I mean, ये patients को किस तरह से benefit करता है? मेटल नहीं है, आप समझिए कि आपका कोरोनरी आर्टरी लाइव ऑर्गन है, वो कोई पाइप नहीं कि हमने अंदर से स्कैफोल्ड कर दिया मेटल से। तो एक बार मेटल डाल दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड नहीं कर पाता है, तो नेचुरल ऑर्गन की तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। कोई भी स्टेंट हम लोग डालते हैं, उसका मतलब ये रहता है कि कुछ देर के लिए उसको स्कैफोल्डिंग की जरूरत है, मगर जब स्कैफोल्डिंग की जरूरत नहीं और मेटल लाइफ लॉन्ग वहां पे रहे, ये अच्छी चीज नहीं है। तो जब जरूरत नहीं है तो मेटल लेस एंजियोप्लास्टी जरूर करवानी चाहिए। तो सर metal-less angioplasty और laser angioplasty which we can call, ये इसकी recovery time और patient related different stuff, how is it beneficial here? How does it benefit the patient directly? एज फार एज पेशेंट इज कंसर्न्ड, टेक्निकली करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, मगर पेशेंट का जो एक्सपीरियंस नॉर्मली रहता है गोइंग थ्रू द एंजियोप्लास्टी इज द सेम। So is the recovery time shorter here? Yes, absolutely. I mean, there is no stent. We are not scared about वहाँ एकदम से क्लॉट हो जाएगा, कुछ स्टेंट बंद हो जाएगा, तो उसका रिकवरी टाइम शॉर्टर रहता है, सेफ्टी ज़्यादा रहती है। और लुक एट लंबे समय के लिए, आप आज से नहीं, आप 10 साल के बाद देखो, 20 साल के बाद देखो, तो वहाँ पे मेटल नहीं है और वो आर्टरी नॉर्मल ऑर्गन की तरह बीट कर रही है, तो वो ज़्यादा आपके लिए सेहतमंद रहेगी। So, sir, when it comes to laser angioplasty, how safe and effective is this treatment as compared to the other procedures of cardiology? लेजर हम लोग जब भी सोचते हैं तो हम लोग स्टार वॉर सोचते हैं कि yes. वो गन लेजर वाली लगा दी और कोई sharp shooting red line आएगी। Absolutely. So ऐसा ही होता है क्या? yes, actually it is the same technology, but this is medically monitored graded technology। वो काफी सेफ है। जब भी आप एंजियोप्लास्टी करते हो तो बलून लगता है या फिर स्टेंट लगती है या फिर वो डायमंड कटिंग वाला हम एथ्रोटॉमी करते हैं, तो एक्चुअली यू आर फिजिकली टचिंग दैट आर्टरी, राइट। सो इन लेजर टेक्नोलॉजी वी आर एक्चुअली फिजिकली कोई टच नहीं कर रहे, और जो कोलेस्ट्रॉल है, थ्रोम्बस है, कैल्शियम है, उसको लेजर के हिसाब से उसको निकाल रहे हैं। मगर ये टेक्नोलॉजी इतनी मॉनिटर्ड और डेवलप्ड है कि वो आपके नॉर्मल ऑर्गन्स को हार्म नहीं करती है, आपकी बॉडी को हार्म नहीं करती है। तो लेजर टेक्नोलॉजी इज वेरी सेफ एंड इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, जो आपको मेटल लेस का ऑप्शन देती है। काफ़ी चीज़ों के हिसाब से शायद बाईपास अवॉइड हो सकता है, तो इट्स अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी। और कोई भी टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में आती है तो उसमें बहुत सारा रिसर्च लगा रहता है, बहुत सारे ट्रायल्स लगे रहते हैं। So it is technically very safe. Absolutely safe technology, much safer than what other lot of technologies are. So लेजर सुन के स्केयर होने की बात नहीं, इट इज अ पॉजिटिव थिंग कि वो आपको क्योर कर सकता है। Definitely, sir. ये laser technology, the new terminologies which are coming, robotics, these are quite scary for people. So अगर आपसे पूछा जाए कि there will be many patients who will be requiring this laser angioplasty, will be going for this laser angioplasty, शायद सब आपके पास नहीं आ पाएंगे, but for those patients, what are the must questions that they may ask their cardiologists before going for a laser? He has to ask, first thing is really angioplasty necessary? अच्छा। Second thing, is really stent necessary? स्टेंट अगर डल रहा है तो कौन से क्वालिटी का और क्या डल रहा है, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है। और एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग लेजर एंजियोप्लास्टी, एथ्रेक्टोमीज है, इंट्रावेस्कुलर इमेजिंग है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोपोग्राफी, ये पूरे एक्यूरेसी के लिए क्यों आए हैं कि हम लोग जो आर्टरीज हैंडल करते, कोरोनरी आर्टरी, वो 2 मिलीमीटर डायमीटर से लेके ज्यादा से ज्यादा 4 मिलीमीटर डायमीटर के रहते हैं। अच्छा। तो इतने स्मॉल स्केल पे आपको एक्यूरेसी, उतना विजुअलाइजेशन और एक्यूरेट काम करना जरूरी है। सो ये टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर रही है दिन ब दिन उसको ज्यादा परफेक्ट करने के लिए। सो दिस इज द साइंस ऑफ परफेक्शन। अच्छा, तो सर ये जो लेजर एंजियोप्लास्टी है, can we say that it's a boon for cardiology patients? Absolutely. And is there any particular age group which might get very benefited out of this? Especially young people. Try to understand. So again coming back to young adults. Absolutely. And heart attacks. Absolutely. आप सोचिए अगर कोई 20, 25, 30 साल का बंदा है जिसको हार्ट अटैक आ गया है और उसको क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक आया है, तो उसमें स्टेंट बिठाना अच्छी चीज नहीं है। दैट इज गोइंग टू बी देयर। इंस्टेड ऑफ दैट, लेजर क्या करेगा, ये जो आपके क्लॉट्स है उसको वेपराइज कर देगा और आपको स्टेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और ये जो बून है, रियली बून फॉर यंग
कार्डियक अटैक्स कि जिनमें अननेसेसरी स्टेंटिंग अवॉइड किया जा सकता है. इट्स अ बोथ. सो सर, अगर किसी को पहले ही एंजियोप्लास्टी हो चुका है एंड इफ इट वाज अ स्टेंट एंजियोप्लास्टी एंड नाउ द पर्सन इज गोइंग थ्रू अगेन वन मोर फेज ऑफ हार्ट अटैक और ब्लॉकेज, क्या एग्जिस्टिंग स्टेंट वाले पेशेंट्स पे भी लेजर एंजियोप्लास्टी हो सकता है? एब्सोल्युटली. लेजर एंजियोप्लास्टी का एक इंडिकेशन है इंस्टेंट रीस्टेनोसिस. अगर आपका पुराना स्टेंट डला हुआ है और उसके अंदर ब्लॉकेजेस हो गए, तो लेजर इतना इफेक्टिव है कि अंदर के ब्लॉकेज इतने निकालता है कि अगर आप इमेजिंग करो उसको तो अंदर से वो स्टेंट पूरा दिखने लगता है. तो इतना अच्छा. वो क्लीन कर बट देता वो है. लेजर की वजह से एग्जिस्टिंग स्टेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, वो मेटल है तो उसको लेजर उड़ा नहीं सकता, एटलीस्ट ये ग्रेड का लेजर. और वो पूरा क्लीन कर देता है. अगर स्टेंट के अंदर आपके ब्लॉकेजेस आ गए तो आपका पुराना स्टेंट अगर ब्लॉक हो गया होगा तो लेजर एंजियोप्लास्टी का ये एक बड़ा इंडिकेशन है. सर, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. अप टू व्हाट लेवल ऑफ ब्लॉकेज कैन अ पर्सन postpone the angioplasty, and are these blockages reversible? ब्लॉकेजेस कोई ड्रग कोई निकला नहीं जिसकी वजह से वो 100% निकल जाए. नॉर्मली 70% तक ब्लॉकेजेस बॉडी सह लेती है. बॉडी एडजस्टमेंट करती है कि उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं गिरता है और आपको सिम्टम डेवलप नहीं होते. एक बार 70 के ऊपर जाने लगा और फिर ब्लॉकेजेस आपको एंजाइना देने लगे, चेस्ट पेन देने लगे, स्पेशली आप चलते हो तो आपको तो जरूर ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए. कोई ऐसी प्रूवन थेरेपी नहीं जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस निकल जाए और वैनिश हो जाए, तो उसको मैकेनिकली ट्रीट करना चाहिए. तो अगर समझ लीजिए किसी को 20% या 30% ब्लॉकेज है, and if that person starts doing the lifestyle modifications as you said, so we are saying कि further deposition on that blockage might be halted for some time, उसको रोक सकते हैं थोड़ी देर के आप लिए? ये समझिए कि 20-30% ब्लॉकेजेस आपको मुझे भी है. अच्छा. ह्यूमन बॉडी है, ये कोई स्ट्रेट पेंसिल से लिखी हुई लाइन नहीं है. अच्छा. तो इसमें बॉडी में नेचुरल टेंडेंसी से कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है. तो 20-30% ब्लॉकेजेस सब में रहते हैं. अगर वो 70% से ज़्यादा है तो इम्पोर्टेंट है. अगर कम है तो आप लाइफस्टाइल, डाइट और स्टैटिन और काफ़ी चीज़ों से उसको बढ़ने से रोक सकते हैं और कुछ एक्सटेंट तक उसको रिग्रेस कर सकते हैं. हालांकि 100% आप उसको वैनिश नहीं कर सकते, मगर उसको रोका जरूर जा सकता है. ये हम लोग इसको एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं. कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरी में डिपॉजिट होने की टेंडेंसी किसी में ज्यादा रहती है, किसी में स्लो रहती है, मगर वो लाइफस्टाइल से बिल्कुल हॉल्ट की जा सकती है. तो सर, ये जो लेजर एंजियोप्लास्टी है, इन प्रोसीजर के बाद पेशेंट को फुल्ली बैक टू नॉर्मल लाइफ आने में कितना टाइम लगता है? हॉस्पिटलाइजेशन कितने टाइम का होता है? एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट पेशेंट शुड एक्सपेक्ट? बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ सर्जरी, कुछ लेवल के पेन तो होने ही है. तो व्हाट आर द थिंग्स दैट पेशेंट शुड एक्सपेक्ट आफ्टर और गोइंग टू गो थ्रू द लेजर एंजियोप्लास्टी? लेट अस मेक इट सिंपल. इसको ना हम लोग एंजियोप्लास्टी बोलेंगे, सर्जरी नहीं. अच्छा. क्योंकि जैसे आप हाथ में कोई सलाइन का प्रिक लगाते हो, वैसे ही हम लोग हाथ से या पैर से एंजियोप्लास्टी करते हैं. तो वहां पे जो प्रिक लगता है जब आप कोई इंजेक्शन लेते हो, उतना वाला ही दर्द होगा. अच्छा. जब हम लोग अंदर ऑपरेट करते हैं एंजियोप्लास्टी, तो आपको वहां पे कोई ज्यादा दर्द या दर्द होने वाला नहीं है. ओके. दिस इज ए नॉन इन्वेजिव कटिंग वाला ऑपरेशन नहीं है. तो एक दिन हम लोग सेफ्टी के लिए आईसीयू में रखते हैं, दूसरे दिन आप चल के घर जा सकते हो. So you can literally walk out of the hospital Absolutely, and absolutely. get back to your normal Yes, life. and then recovery depends on whether you had a heart attack or not. अच्छा. अगर आपको हार्ट अटैक आ गया तो एंजियोप्लास्टी की वजह से आपको रेस्ट की जरूरत नहीं. प्रॉबेबली आपको जो हार्ट अटैक है उसके रिकवरी की जरूरत है. तो एंजियोप्लास्टी किया इसका मतलब है आप 1 महीना, 15 दिन, हफ्ता भर लेटे रहो, ऐसे बिल्कुल नहीं है. अगर आपका हार्ट का पंपिंग नॉर्मल है, आप अगर जाके सीधा एंजियोप्लास्टी कराते हो तो नेक्स्ट दिन आप काम कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो. सो वेस्टर्न कंट्रीज में काफी बार हम लोग डे टाइम या बोल सकते हैं लंच टाइम एंजियोप्लास्टी के कंसेप्ट आई है. Lunchtime angioplasty. That's a beautiful term, I must say.
सो वी आर प्रैक्टिसिंग लंच टाइम एंजियोग्राफीज। हम लोग 3 मिनट में एंजियोग्राफी करते और लिटरली 1 घंटे में पेशेंट को डिस्चार्ज दे देते। वाओ, ये एंजियोग्राफी हम लोग हाथ से करते, जिसको रेडियल एंजियोग्राफी सो नो, बोलते हैं। एब्सोल्युटली नो हॉस्पिटलाइजेशन। नो हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर प्रोसीजर है। अच्छा, एंजियोप्लास्टी भी वैसे ही डेवलप होती जा रही है, सेफर होती जा रही है, मगर मेरी प्रैक्टिस है अभी भी कि एंजियोप्लास्टी है, हार्ट को मैंने हाथ लगाया तो एक दिन भैया आईसीयू में रहने दीजिए, नेक्स्ट डे आप वॉक करके चले जाओ। वर्क करके चले जाओ, अपने नॉर्मल रूटीन में जाओ। सो एब्सोल्युटली। एज यू आर सेइंग सर कि ये इट इज एब्सोल्युटली बून फॉर स्पेशली यंग एडल्ट्स जिनको हार्ट अटैक्स है, ब्लॉकेजेस है. So once they undergo this procedure and they go back home and now they want to lead a normal life कि सबक मिल गई है, बहुत छेड़खानी कर दी, अभी back to routine life. तो इन सारे पेशेंट्स को कितने जल्दी how soon they can get back to their workout, and as you said it has to be taken slow and we have to take it step by step. तो इनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? नॉर्मली कोई भी बॉडी पार्ट है, जैसे हमारी हड्डी टूट गई तो हम लोग 1.5 महीना प्लास्टर में रखते हैं, क्योंकि उतना टाइम लगता है पूरा रिकवरी होने के लिए, राइट? अच्छा, जैसे अच्छा. हार्ट का इट्स अ बॉडी टिश्यू, उसको नॉर्मली 1.5 मंथ पूरा देना चाहिए, पूरा फुल जोशो हवस से एक्सरसाइज करने के लिए। हम्म. मगर ऐसे नहीं कि आप बेड रिडन हो, एंजियोप्लास्टी के बाद इमीडिएटली आप चलना घूमना धीरे धीरे एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, और कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ानी है, तो 1.5 महीने के बाद तो कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी. तो सर जैसे आपने कहा कि लेजर एंजियोप्लास्टी इज नाउ अवेलेबल एट आर सह्याद्री आल्सो. सो हाउ इज द रिस्पांस एंड हाउ डू यू फील अ डिफरेंस इन प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट्स? थोड़ा सा कुतूहल है कि ये क्या रहता है, फिर थोड़ा सा डर बना है लोगों में कि एग्जैक्टली कितना सेफ रहेगा। मगर टेक्नोलॉजी यस अडॉप्ट करनी चाहिए, वंडरफुल टेक्नोलॉजी, सेफ है, स्पेशली इन ट्रेंड हैंड्स, और हम लोग अटमोस्ट केयर लेके उसको सेफ्टी से परफॉर्म करते हैं, और उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। स्पेशली इट कम्स टू मेटल लेस एंजियोप्लास्टी, अगर आपको अवॉइड करनी है, आपको बाईपास अवॉइड करना है, या फिर क्लॉट भगाने और उधर कुछ डालना नहीं है स्टेंट, तो ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। करेक्ट मोशन से उसको अगर एक्सेप्ट किया जाए और करेक्ट तरीके से उसको समझा जाए कि एग्जैक्टली समझाया जाए. किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, तो वो तो काफी ऐसे भी कारगर पेशेंट्स हैं जिनको लेजर एंजियोप्लास्टी इज नॉट रिकमेंडेड? इज इट या कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन फ्यू यस पेशेंट्स? मेनी टाइम्स अगर 100% ब्लॉकेजेस हो, क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन बोलते हैं, तो वो हम्म. पूरे सिर्फ लेजर की तरह से नहीं हो सकता है, हम्म. या कुछ टेक्नोलॉजिकल कुछ ग्लिचेस रहते हैं जिसकी वजह से हमको स्टेंट डालना जरूरी हो जाता है। हम्म. तो कुछ पेशेंट्स में ऐसे नहीं कि हर बंदा लेजर एंजियोप्लास्टी के लिए फिट है या हो ही सकता है, हम्म. मगर अगर होता है तो बढ़िया चीज है। सो सर ये जो लेजर एंजियोप्लास्टी है, इसमें क्या क्या ये उन पेशेंट्स पे भी कर सकते हैं जिनके कुछ अपकमिंग प्रोसीजर्स है या फिर कुछ अपकमिंग सर्जरीज है? इज इट सेफ टू डू a laser angioplasty in even in those patients? यस अगर आप स्टेंट डालते हो एंजियोप्लास्टी के बाद, तो वहाँ पे मेटल रहता है, और आपको ब्लड थिनर कम से कम 1 साल लेना जरूरी रहता है। अच्छा. तो अगर कोई सर्जरी करनी है तो फिर वो पोस्टपोन हो जाती है। आपने हाँ. काफी बार सुना होगा, तो एंजियोप्लास्टी की बाद में हाँ, आपको एंजियोप्लास्टी की अभी 1 साल तक कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकते. कर सकते। तो ये जो ब्लड थिनर रोक नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे मेटल है। हाँ. अगर हम लोग मेटल लेस एंजियोप्लास्टी करते या लेजर एंजियोप्लास्टी करते, तो शायद नहीं, पक्का ब्लड थिनर की जरूरत नहीं। अच्छा. तो हो सकता है 2-4 दिन के बाद हम लोग बंद कर दे और वो मेजर सर्जरी करवा सकते हैं। अच्छा. सो ये पेशेंट्स बहुत बेनिफिट होंगे जिनको इमीडिएटली कोई मेजर सर्जरी करवानी है, हार्ट की ब्लॉकेजेस की वजह से फिटनेस नहीं हो पा रही है, रिस्क बढ़ रही है, तो ये होगा कि एंजियोप्लास्टी आप करवाइए, 2 दिन जाने दीजिए और फिर मेजर सर्जरी करवाइए। 2-3 दिन में ही हम you लोग are ब्लड fit, थिनर थाम रुकवा सकते हैं। यस रुकवा सकते हैं and you are हम fit लोगों ने for ऐसे another काफी visit केसेस session. किए, हिप की सर्जरी, नी की सर्जरी, मेजर सर्जरी हाँ. है, एंजियोप्लास्टी की, 2 दिन ब्लड थिनर रखे, तीसरे दिन बंद कर दिया और पेशेंट वेंट And the सेफली patient फॉर द is एंजियोप्लास्टी। absolutely fine. एब्सोल्युटली। Coming to the cost part of it, sir, what should a patient expect when it comes to the treatment charges for laser angioplasty? जो नॉर्मल एंजियोप्लास्टी कॉस्ट करते उसमें तकरीबन आप एक समझिए 20-30% ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई है, उसमें कैथेटर लगते हैं, एक्सपर्टाइज लगते हैं, और तो 20-30% हाइकअप इन नॉर्मल जो एंजियोप्लास्टी की कॉस्ट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। पर जैसे आप जानते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे रूटीन में आ जाती तो कॉस्ट उसकी कम होते लगती है। Correct, correct. लेट अस होप कि हम लोग एक 4-5 साल में रूटीन कॉस्ट में एंजियोप्लास्टी कर पाए लेजर से। तो सर एक मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है और जो मुझे आपसे पूछना ही है आज के पॉडकास्ट में। तो सर इट्स बिन ऑलमोस्ट सो मेनी इयर्स दैट यू आर प्रैक्टिसिंग, आप सर्जरीज करते हो, रोज करते हो।
So how does it feel? I mean, अभी भी थोड़ा सा धक धक होता है? Does your heart beat before the surgery? या फिर प्रो हो गए हो कि नहीं अब तो करना है, ठीक है कर लो? मैं ना सिंसियरली मानता हूँ कि हम लोग ना क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी नहीं. ओके, अच्छा. तो हम लोग, आप कैथलैब में आ जाओ, वहां पे एक गणपति बापा की मूर्ति लगी हुई So है, you pray यीशु before the क्राइस्ट है. surgery? वी डेफिनेटली पे बिफोर सर्जरी टू डिलीवर द बेस्ट. और एक बार फिर हम लोग ऑपरेट करना शुरू करते, इट इज द स्क्रीन एंड वी आर टॉकिंग, then So the then screen it talks is to you. absolutely, Heart also talks to you. absolutely it has to. So this conversation must be very interesting between you, heart, and the screen. Absolutely, it's that's what it fascinated me since childhood. So you always wanted to be a cardiologist. Absolutely, from my, I mean, very, as far as remember, it was always being a cardiologist. I mean, it truly hats off to you, because every cardiologist and person like you, it must be a sadhana. एक साधना होती है ये जर्नी पे आना, and it's not easy. So hats off to you, sir. Thank you for giving us the time today. It was a beautiful conversation, and I'm very sure today many of the questions which we always had in our hearts, we wanted to ask a cardiologist, but कभी मिलते नहीं थे या फिर हमें पता नहीं होता है कि डॉक्टर से कैसे बोलना है. I'm very sure you have cleared a lot of doubts today. Thank you for coming on our podcast, sir. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you.